تو اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے 15 شعبان کا روزہ، پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دے۔ اوپر ان کے نام کا پتہ، اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اور اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے۔ اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کا، بہترین بندگی۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ 80 سال تک عمر ہی نہیں جانتی، پہلے ٹول کر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ، پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ، اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے۔ اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑانے وال کون گنے، ایک بھی گنے بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جائے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہے، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں
अपने घरों को मस्जिद बनाओ। मेरे नबी कभी भी सुन्नतें मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। अब हैरान होंगे कि मेरे नबी ने कभी जिंदगी इशराक पढ़े, मस्जिद में 2 नफल आपने पढ़े हैं इशराक, इसके अलावा आप सुन्नतें घर से पढ़ के आते थे और नवाफिल घर जाके पढ़ते थे। तो ये नफली बंदगी की रात है भाइयों। तो इस रात में इनफिरादी इबादत है, कोई इज्तिमाई नहीं आओ भाई सलात तस्बीह पढ़ें और आप इकट्ठे बैठ के जिक्र करें अकेला। और फिर इसमें बेहतरीन बंदगी है तौबा करना और दुआ का, बेहतरीन बंदगी, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पे नजर डालता है और सब अहले ईमान की बख्शिश करता है सिवाय मुशरिक जो पहले ईमान वाला नहीं, मुशरिक ईमान वाला नहीं। नंबर 2 शराब पीने वाला मुस्तकिल जो शराब का आदी है, इस रात में उसके लिए फाइल नहीं खुलती। तीसरा वालिदैन का नाफरमान जो माँ बाप को दुख देता है वो देते ही चला जाता है। कभी कभार गुस्साखी हो जाना फितरत की बात, लेकिन उनको जलील ही करना है, गिरबान ही पकड़ना है, बड़े दुख की बात। एक नौजवान अपने बाप से कह रहा था तू आयता ही मेरे वास्ते की कीता है। उस बाप के चेहरे पर जो दुख था मैं आज तक नहीं भुला सका। 40-50 बरस इस बाप को हो चुके हैं। तो आयता ही मेरे वास्ते कीता की है। बाप पढ़ा गया, उसका बाप कह रहा था अच्छा मेरा पुत्र, अच्छा मेरा पुत्र। उसको बात नहीं आ रही थी गम और दुख की वजह से, वरना एक सोटो दे सिर मार लगे ना मुरादा वो मैं तो तेरे दुनिया चामन का वसीला मैनू या की जाना तू आयता ही मेरे वास्ते कीता की। तो शिरक करने वाला मुशरिक, मुशरिक अल्लाह को नहीं मानता, पत्थरों का पुजारी। नंबर 2 शराब पीने वाला। नंबर 3 माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान। नंबर 4 कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला दिल में। एक होती है नफरत, एक उससे बढ़कर अगला होता है कीना। कीना क्या होता है? नुकसान पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। मेरे दांत आगे सही एक बार फिर मैंने दसागा मैं कौन हाँ। ये जज्बा रखने वाला उसकी भी बख्शिश नहीं होती। 5वां कौन है? जो रिश्तेदारों से लड़ता रहता है, ताल्लुक तोड़ता है, नफरत करता है, रिश्तों को तोड़ता है। 6 जिना करने वाला, मर्द हो या औरत आदि हर इंसान से हर गुनाह हर वक्त हो सकता है और मेरे अल्लाह ने हर फे के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा हुआ है। जो मुस्तकिल किसी भी गुनाह में है उसके लिए भी दरवाजा खुला है। ये जितनी सजाएं सुनाई जा रही इनसे कभी गुनाह हो जाए वो इसमें नहीं है। ये वो हैं जो आदी हो गए, मुस्तकिल जिना करता है, औरत है या मर्द है, उसके लिए भी आज की रात भी कोई बख्शिश कोई नहीं, उसके लिए भी कोई बख्शिश कोई नहीं। मैं बाकी सबको अल्लाह माफ फरमा दे, सबको अल्लाह माफ फरमा दे। और एक तकब्बुर करने वाला, तकब्बुर करने वाला जो, और तकब्बुर अल्लाह को इंतहाई नापसंद, इंतहाई नापसंद। तो मैं इधर दोबारा दोहरा देता हूँ, इस रात में अल्लाह की बख्शिश इस तरह आती है कि जितने कल्ब कबीले के भेड़ों के जिस्म बर्बाद हैं। ये मिसाल है, ये नहीं कि अल्लाह ताला फरिश्ते नु गलना जावे उनको करला नु लोर को नहीं फरिश्ते नु भेजने आप ही गिन लगे। तो ये वो गिनती वाला चक्कर नहीं, मिसाल है कि अल्लाह पूरी उम्मत इंसानियत में जो अहले ईमान है अल्लाह सबको माफ फरमा देता। खुसूसी पैकेज इस उम्मत के लिए, खुसूसी पैकेज। हाँ कुछ लोग हैं जिन पर आकर अल्लाह की रहमत भी रुक जाती कि नहीं नहीं ये इतने बड़ी खताएं हैं कि ये छोड़ देंगे तो अल्लाह की रहमत उनको अपने साए में ले ले। अल्लाह की बारगाह में कुछ गुनाह की कोई हैसियत नहीं, तौबा कर ले। शिर्क भी है हजारों साल का, तौबा कर ले यूं मार, एक सेकंड में मार। तौबा ना करे तो फिर काम खतरनाक, तौबा कर ले तो शिर्क भी माफ है। तो इस रात की बरकतों में, रहमतों में हम तौबा करें अपने गुनाहों पर। हम नेकियां भी गुनाह हैं हमारे। और मैं फिर सुना रहा हूं, इस रात में बख्शिश नहीं होती शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमा, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, दिल में नफरत की नाम पालने वाला, तकब्बुर करने वाला, जिना करने वाला, शिर्क करने वाला वाली दोनों, मर्द औरत दोनों के लिए चल रहा है। लेकिन अगर कोई भी तौबा कर लेगा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम सम्माफून। मैं इस पर तिरमिज़ी की एक रिवायत याद है जो वाक़या सुना। बनु इसराइल में एक नौजवान था, उसका नाम था किफली। हर रात शराब और लड़की, हर रात शराब और लड़की।
एक रात वो एक लड़की को 60 दीनार पर लेकर आया। 60 दीनार 12 लाख रुपया बनता है। 60 दीनार 12 लाख रुपया बनता है। कितना वो शख्स मालदार था कि एक रात एक लड़की पे आज के 12 लाख उसने लगा दी। जब वो कमरे में आया, दरवाजा बंद किया तो उसने देखा वो बच्ची रो रही थी। तो किफल ने कहा, मैंने जबरदस्ती तो कोई नहीं, मुका करके तुम्हें लाया। तो उसने रोते रोते कहा, किफल मैं तवाइफ नहीं हूं, मैं इज्जतदार हूं, मुझे भूख नहीं यहां तक पहुंचाए। मैं इस पर बड़े दर्द से कहा करता हूं, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियों पे तवाइफ पे ठप्पे लग गए। मेरे तलम्बे में तवाइफों का अड्डा है जो रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान फतह किया था। मुजफ्फर खान हुक्मरान थे, लड़के हुए 5 बेटों समेत शहीद हुए थे। उसने मुल्तान कहरोड़ पक्का, और मेरा होम टाउन है कलम्बा, उससे 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। इसने मुल्तान से ज्यादा तुलंबा में क्याम किया। 1 महीना तुलंबा में ठहरा रहा और वहां उस कमबख्त ने बाजार हुस्न बनाया, मुल्तान में बनाया, कहरोड़ पक्का में बनाया। हीरा मंडी जो मशहूर थी, जो बहुत बड़ा तवाइफों का अड्डा था, हीरा सिंह इसका एक चहीता था, इसका रखेल था लड़का, उसको उसने वो इलाका गिफ्ट किया था और वहां भी उसने ये बनाया था। पिछले 8-10 साल से मैंने उन बच्चियों में जाना शुरू किया, उनको बुलाना शुरू किया, उनसे मिलना शुरू किया। अब यकीन माने मेरे जिगर पे जख्म है उन बच्चियों के आंसू देखकर। वो सब जमींदारों की औलादें, सब बड़े बड़े जमींदारों की औलादें हैं और उन्हें माशरे ने तवाइफ का ठप्पा लगा दिया जो मौत पे भी नहीं कहीं जाए। और इतना मैंने, अल्लाह का फजल है, वो खत्म होने पर, आखिरी दमों पर है, तकरीबन खत्म हो चुका है। मैंने एक से कहा अपनी बच्ची की शादी कर दे। कहा जी मौलाना साहब तुसी को रिश्ता ढूंढो। मैं कौन एदा तो मैं फारिग कोई नहीं, तेरी बेटी है। लगे मौलाना साहब तवाइफ दे कोठे थे कौन? इस दर्द से उसने कहा मेरे आंसू निकल। मौलाना साहब तवाइफ दे कोठे थे क्या रिश्ता लेना वास्ते? यहाँ रिश्ता लेने कोई नहीं आता, यहाँ इज्जत लूटने आता है। इतनी दुख भरी दास्तानें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इन्हें तवाइफ बनाने वाला हमारा मुआशरा है, हमारा बदमाश मर्द है, हमारा जानी इंसान है कि जो किसी की बेटी की इज्जत से तो खेलता है, उसको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे अल्लाह ने आखिरत का दिन रखा है। मुजरिमीन, उस दिन अल्लाह कहेगा आज एक पासे हो जाओ। अल्लाह की कसम मैं आपको खा के कह रहा हूं, मुझे मजलूम तरीन बच्चियां नजर आई तवाइफ से। उन्होंने अपनी बेटियों की तरह समझ, कितनों की मैंने शादियां करवा दी अल्लाह के फजल करम से। किफल रोने लगा, उसका रोना दे, कहने लगा मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से चली जा, और जो तुझे दिया है 12 लाख आज का ले जा अपना कारोबार का। किफल को नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सारी जिंदगी नवी लड़की, नवी शराब की बोतल, और ये बच्चियों, इस बच्ची के आंसुओं ने उसे हिलाया। इंसान कितना ही गंदा हो, अंदर में एक खूबसूरत इंसान छुपा हुआ है। मैं बड़े बड़े बदमाशों से भी मिला, उनके अंदर भी ये एक खूबसूरत मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है जिसको कोई थोड़ा सा फीड दे दे तो वो जवान हो जाएगा। लेकिन मेरा मुआशरा ऐसा है कि वो नेकों को बदमाश बनाता फिरता है, बदमाशों को गले कौन लगाए, तवाइफ के सर पे हाथ कौन रखे। वो गया है, वो गई है घर और किफल मर गया, हार्ट अटैक हुआ और किफल मर गया। हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं अपने रब की कदरदानी पर। सुबह ये मुर्दा मिलता ना तो ना किसी का जनाजा चावण आई, ना किसी ਨੂੰ गुसल देवण आई, ना किसी ਨੂੰ कबर च पावण आई। विच गल सड़ के खत्म हो जाता जो उसका करतूत से। मेरे रब ने क्या किया, सुबह क्या देखा लोगों ने, किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था मेन गेट के ऊपर, इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफल, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये मेरा रब है। और ये बंदा था बनी इसराइल का, और तुम और मैं है मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्यों लिखवाया कि मैंने किफल को माफ किया? कि मैंने यारी लगा ली, माफ किया जाओ, मेरे बंदे को बाइज्जत मेरे पास पहुंचाओ। तो ये रात वो है तो सारी जिंदगी गफलत में गुजारी, एक आंसू बहा दे, चलो अगर मैंने तो रोना ही नहीं होगा। हाय तो तेन होंगी है ना,
ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں،